Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to this session, very important session of research. And today we are going to discuss how we can develop a good research proposal. And I'm Professor Dr. Zahid Iqbal, Head Department of Pharmacology at Swat Medical College. Well, our discussion would be limited to the components of a research proposal and how we develop this research proposal. And we will follow the guidelines of Higher Education Commission of Pakistan, which is the major financer of academic research proposals all over the Pakistan. So, Higher Education Commission of Pakistan has got various programs, and very known program is National Research Program for Universities, under which Higher Education Commission of Pakistan (HEC) it finances, it grants millions and millions of rupees every year to the researchers who apply through their portal for grant of research proposals. So we'll follow the guidelines of Higher Education Commission. Shortly, we name it as HEC. So outlines of today's discussion would be limited to research proposal components. Basically, a research proposal comprises of 8 major components, and we are going to discuss this in today's discussion. It is the first of all, it is having title, and then summary, introduction. It got literature review, methodology, references. You also cite the impact of the research project, and you give the budget, propose the budget for that research project. So we will limit our discussion to all these topics, and we'll discuss how we can develop these heads basically. So before we go into detailed discussion of developing a research project, we should know the stages of research. The first stage of research is conceptualization. Conceptualization means that you get the concept of doing a research project. You get concept, you get clarity in your mind, you get idea, and all these things, when they get clear into your mind, and you get a framework of your research proposal in your mind, this is called conceptualization. And then it comes the planning and design actually. So the second stage of research is you plan the research and you design it, how you're going to perform it, what you need, where you need, when you need, and how much you need. All these things you plan them, and plan you implement that plan basically. And based on those plans, the next stage of research is data collection. You go into the field, you go into the hospitals, you go into the community, and according to your plan and research design, you get data. We have already discussed qualitative and quantitative research designs, and I have told you that mostly we follow quantitative research designs. So are you we may follow also mixed method research as well. So according to that design, we collect the data from the community, whichever cohort we have selected, we collect data from that cohort basically. And then after collecting the data, you analyze the data. Next stage is analysis and interpretation of your results. You analyze the data, basically you comprise that you comprise that data, you put into certain softwares like SPSS, statistical package for social sciences, like you put it into Excel sheets, and you statistically analyze that data to get know about the variance, and to get know about the significance and differences and similarities. All these things you analyze through statistical softwares. And after statistical analysis of data, you interpret your results, and based on those statistical analysis, you interpret your results and make them understandable to the others. What is meant by the tables in your research, what is meant by the graphs in your research, what your data is depicting, basically all these things you interpret into your own words, and this is called interpretation of the results. So the fourth stage is analysis and interpretation of the results. And then there is
write up basically. Like if you are a student and you are doing your research project for the sake of degree, then you write it into your dissertation or thesis. So you write your results, write up of your results, and after write up you present it in certain committee, you defend your results in an open seminar. This is dissemination, and then you get it published in some research journals, relevant research journals. That is publication of your results. And very important thing is, research unpublished is research undone. You should be very clear. Whatever you do, whatever you get insight into your research project, whatever you discover, it could be a novel discovery, it could be a very novel thing, but it is considered as undone until you publish it, until you make it available for the community and researchers and your colleagues and peers, all of the people around you. ठीक है, जब तक आप अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं करते या उसको डिसेमिनेट नहीं करते, लोगों तक पहुंचाते नहीं है, तब तक आपकी रिसर्च समझ में हुई नहीं है। ये सादा सा इसके मीनिंग्स हैं। तो कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं रिसर्च की। कंसेप्चुलाइजेशन, प्लानिंग एंड डिजाइन, देन डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स, एंड देन डिसेमिनेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ अ रिसर्च। ठीक है ना? तो इन 5 स्टेजेस से हर रिसर्चर को गुजरना है, तो उसका रिसर्च प्रोजेक्ट जो मुकम्मल होता है। अब स्टेजेस को हमने स्टेप्स में डिवाइड किया है। वो स्टेप्स क्या क्या है? Now coming to the steps in the research, you first choose a topic. Yes, वो आप lot of deliberation के बाद, अच्छे खासे literature review के बाद you find study gaps, ठीक है ना? तो अब वो study gaps को आप how to fill those gaps, आप अपने research question, सारा कुछ, all of the thing you discuss with the peers, you discuss with your supervisors, your colleagues, teachers, and then you come to a conclusion कि आप इस topic पे research करना चाहते हैं, and then you write that topic. उसको मल्टीपल टाइम्स राइट अप करते हैं, उसका टॉपिक का सिर्फ वो एक सेंटेंस होता है, और फिर आप उसको रिफाइन करके रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल बना देते हैं, उसको टॉपिक आप कहते हैं। ठीक है, देन यू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना? फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप स्टडी डिजाइन उसके मुताबिक आप देखेंगे कौन सी स्टडी, कौन सा स्टडी डिजाइन लगता है। इज इट अ क्वालिटेटिव स्टडी, और इज इट अ क्वांटिटेटिव स्टडी, और इज इट अ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप उस डिसाइड करेंगे, ये अगला स्टेप है। एंड देन बेस्ड ऑन योर स्टडी डिजाइन you collect the data, then you analyze the data, then you interpret the data, and then you write it up and present these results, and then your research is complete. So these are the steps in research. ये precise steps हैं, इन steps को follow करना है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक चूज करने के बाद आप उसको प्रेजेंट, अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं है। ये जिस तरह ये एक लैडर है, इसको आपने इसी तरह स्टेप वाइज ऊपर चढ़ना है। इसके बगैर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप टॉपिक बाद में चूज करें और डेटा पहले कलेक्ट कर लें, या डेटा भी कलेक्ट नहीं किया उसका एनालिसिस पहले कर लें, अच्छा डेटा कलेक्ट कर लिया स्टडी डिजाइन बाद में देख लेंगे, ऐसे मुमकिन नहीं होता। सो दीज आर द सीक्वेंसेस, these are the steps you need to follow. First step, second step, third, fourth, final. आप इसी तरह, इसी तरतीब के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, then your research project would be complete. आप from day 1 till last day of your research project इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप, अगर आप इन स्टेप्स को अवॉइड करते हैं या किसी को मिस करते हैं, या आप इनको, इनका सीक्वेंस डिस्टर्ब करते हैं, तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो नाउ कमिंग टू मेन पॉइंट, टाइटल। आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे बनाते हैं? तो टाइटल के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं, दैट इट शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये नहीं है कि आप आधे पेज का टाइटल बना दें, नो, दिस टाइटल इज बेसिकली द हॉलमार्क ऑफ योर स्टडी। आपने उस टाइटल के जरिए सारा कुछ बता देना है कि आपने क्या करना है या आपने क्या किया है। ठीक है ना? वो टाइटल इतना प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए और इतना क्रिस्पी होना चाहिए। एंड यू शुड अवॉइड एक्सट्रीमली लार्ज टाइटल। जैसे मैंने कहा कि आपने ये नहीं करना कि
आप उसको आधे पेज का टाइटल बना दें, या एक पेज में आप 2 पैराग्राफ में टाइटल लिखे उसका। नो, टाइटल इज टाइटल, टाइटल इज सिंगल सेंटेंस। एक बात आपने याद रखनी है, एक सेंटेंस वो मैक्सिमम 2 लाइंस का होता है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि एक लाइन में, सिंगल लाइन में, सिंगल सेंटेंस में आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल लिखें। मैक्सिमम ले लें 2 लाइंस, उससे ज्यादा टाइटल नहीं रहता वो, बिकॉज यू शुड अवॉइड एक्सट्रीमली लार्ज टाइटल्स, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। लोग टाइटल को क्रिस्पी समझ के पढ़ते हैं, तो उनको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर वो क्रिस्पी नहीं है, लंबा सा है, तो लोग उसको पढ़ेंगे ही नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना चाहते हैं आप। सो नंबर 1, it should be precise and accurate. You should avoid extremely large titles. And number 3, it should be unambiguous. It should be very clear, crystal clear. जो एक आम आदमी भी पढ़े तो उसको पता चले कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको ये 2 टाइटल बता रहा हूं। एक है एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एंड लर्निंग, क्यों जी, ये टाइटल है। और एक है इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। तो ये दोनों टाइटल में आपको फर्क वाज़ेह नजर आ जाएगा। पहला जो है वो एम्बिगुअस है, ऑल्दो इट इज शॉर्ट बट इट इज इनएक्यूरेट, इट इज एम्बिगुअस। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम इज, एंड हुज लर्निंग इज, एंड व्हाट it would have impact on that learning, or learning having impact on contact program whatsoever। कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रहा। बस सादा सा एक आपने, एक 4 हरफ का एक आपने सेंटेंस लिख दिया, एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एंड लर्निंग। ये इतना ओपन एंडेड है कि इसके अंदर कुछ भी आप कर ले, ठीक है ना। लेकिन इसको आपने प्रिसाइज कैसे किया है, और एक्यूरेट कैसे बनाया है, और अनएम्बिगुअस और क्लियर कैसे किया है। यू रोट that effect of extended contact program on students learning. Now it is clear that contact program is basically the contact hours and the students contact with the teacher and the facilitators and all these things जो कि आपकी कॉलेज के अंदर लर्निंग को इफेक्ट करेंगी, वो है। और बेसिकली जो हमारे, यूं समझ लें कि जो हमारा स्टडी को हार्ट होगा वो स्टूडेंट्स होंगे, स्टडी को हार्ट होगा वो स्टूडेंट होंगे। और कल मैंने आपको बताया एक होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और लर्निंग, इसको वो इंडिपेंडेंट वो होता है जो कि किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता, और डिपेंडेंट कौन सा होता है, जो कि पहले इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट होता है। अब हम एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को कम ज्यादा खुद करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आता है स्टूडेंट की लर्निंग पे। सो स्टूडेंट्स लर्निंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने एक सेंटेंस के अंदर क्लियर कर दी हैं। So it fulfills the definition of precise and accurate, and it is moderate and not, it is not extremely large sentence, and it is clear and unambiguous. So this title is correct, the upper one is incorrect title। तो आपका टाइटल जो है ना, बेसिकली वो सबसे पहली चीज है प्रोजेक्ट की, जो किसी भी बंदे ने पढ़नी है। अगर वो कहते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर उसके दिल में आपका ये टाइटल उतर गया, उसको अच्छा लगा, तो आपके प्रोजेक्ट को गौर से पढ़ेगा और उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। लेकिन अगर उसको बुरा लगा, उसने कहा ना यार, जो अपना टाइटल नहीं सही तरह से लिख सकता, वो बंदा प्रोजेक्ट क्या करेगा। ये जहन में फिर नेगेटिव इंपैक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वो नेगेटिव इंपैक्ट जो अल्टीमेटली इट कल्मिनेट्स, इट एंड्स इन रिजेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टाइटल और समरी होते हैं ना किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की, ये सबसे पहले आते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि इनको सबसे आखिर में लिखा जाए, खासकर समरी को। टाइटल तो आपने लिख लिया, उसको बार बार आप रिफाइन करेंगे, बार बार रिफाइन करेंगे, क्योंकि एक दफा आपने टाइटल जब आपने सबमिट करवा दिया, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये फ्लॉलेस होना चाहिए किसी भी सूरत हाल में, ठीक है ना। तो आपने टाइटल को बार बार रिफाइन करना है, बार बार अपने सुपरवाइजर से, अपने टीचर से, अपने पीयर से,
दोस्तों से डिस्कस करना है, ठीक है ना, और फिर बार बार उसका राइट अप करना है। आप 10-15 दफा राइट अप करने के बाद एक इंतहाई प्रीसाइज, एक्यूरेट और इंतहाई क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्पी टॉपिक के ऊपर पहुंच जाएंगे। इट शुड बी क्रिस्पी एज वेल। नाउ द सेकंड पार्ट आफ्टर द टाइटल which comes in the research proposal, research project is summary. वो है समरी ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली समरी जो है उसमें आप क्या करते हैं, समरी में आपने जो सारा कुछ करना होता है ना रिसर्च प्रपोजल में, रिसर्च प्रपोजल इज बेसिकली यू आर प्रपोजिंग दैट रिसर्च के मैंने ये रिसर्च करनी है, ठीक है ना, मैंने ये रिसर्च करनी है। तो अभी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, समझ लें, अभी आपने लिखा है और आपने कॉलेज को या किसी फंडिंग एजेंसी को जमा करवाना है कि भाई ये मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे ये अप्रूवल दें और इसकी फंडिंग दें। से फॉर इंस्टेंस यू आर अ स्टूडेंट एंड यू सबमिट योर रिसर्च प्रपोजल टू स्वात मेडिकल कॉलेज, तो ये सारी चीजें आपने करनी है। तो उसमें दूसरा पार्ट होगा आपके रिसर्च प्रपोजल का, दैट इज समरी। अब समरी जो है वो हार्डली 250 टू 300 वर्ड्स या मैक्सिमम 400 वर्ड्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए, इससे ज्यादा समरी होती नहीं है। एंड दिस इज द आउटलाइन, दिस आउट समरी आउटलाइंस द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ योर प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल। भाई ये वो चीज है जिससे आपके रिसर्च प्रपोजल का सारा जो कच्चा चट्टा है, जो इन एंड आउट है, वो सारी की सारी रीडर को या रिव्यूअर को या एक्सपर्ट को क्लियर हो जाएगी कि ये करने क्या जा रहा है। दिस इज समरी बेसिकली, ठीक है ना। आपने उसको सारी अपनी एक्टिविटीज को सबको आपने एक पैराग्राफ में समराइज कर देना है, ठीक है। अच्छा, एंड दीज आर बेसिकली आउटलाइंस ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो हम कहते हैं ना फलां स्टोरी की आउटलाइंस ये हैं, या जैसे हम खबरनामा सुनते हैं रात 9 बजे वाला, तो सबसे पहले क्या आती है, हेडलाइंस आती हैं। तो अब उन हेडलाइंस के आगे डिटेल्स आती हैं, फिर पहले हेडलाइंस आती हैं, ठीक है ना। तो दीज आर बेसिकली आउटलाइंस एंड हेडलाइंस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो कि आपने करनी है। एंड इट शुड अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जब आप राइट अप करते हैं तो इंट्रो सॉरी उसके बाद टाइटल के बाद सबसे पहला जो चीज होती है दैट इज समरी। तो आप समरी उसमें सबसे पहले लाते हैं टाइटल के बाद। एंड इट शुड बी ब्रीफ एंड इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन वन पैराग्राफ। और एक पैराग्राफ है ना 250 से 300 अल्फाज, 250 टू 300 वर्ड्स, मैक्सिमम 400 वर्ड्स, इससे ज्यादा की समरी होनी ही नहीं चाहिए। अब होता क्या है कि हमारी समरी जो है वो हम 2-2 पेजेस की समरी लिख देते हैं, दैट इज नॉट समरी। समरी ये है कि आप एक पैराग्राफ में सारा कुछ जो है उसको मुकम्मल तौर पे बयान कर दें, उसकी आउटलाइंस को बयान कर दें कि ये मैंने करना है, ये मैंने करना है। डिटेल्स आपने सारी आगे टॉपिक्स में देनी है, टाइटल जो उसका रेलेवेंट टॉपिक है उसके अंदर हेडिंग के अंदर देनी है, ठीक है। इट शुड बी ब्रीफ एंड शुड नॉट बी लॉन्गर देन वन पैराग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And it would be the first part of your proposal package seen by the agency officials. And here agency means the funding agency. वो स्वात मेडिकल कॉलेज हो सकता है आपके लिए, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी हो सकती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, हायर एजुकेशन कमीशन हो सकता है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन हो सकती है, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज हो सकती है, जैसे इंटरनेशनली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो हो सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हो सकता है। दुनिया में बेशबहा फंडिंग एजेंसी है, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी फंडिंग एजेंसी नेशनली और इंटरनेशनली अवेलेबल है। आप उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रपोजल तैयार करेंगे, लेकिन प्रपोजल के सारे कंपोनेंट्स यही होते हैं और तरतीब भी ऑलमोस्ट यही होती है हर जगह पे। एंड दिस समरी वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रपोजल पैकेज सीन बाय द एजेंसी ऑफिशियल्स टू कंसीडर फॉर प्रोजेक्ट फॉर एनी फर्दर। वो जो कंसीडर करना आपके प्रोजेक्ट को, जैसे कॉलेज में है तो आपको अप्रूवल मिलनी है, एथिकल अप्रूवल और फिनेंशियल अप्रूवल मिलनी है कि हाँ आप ये प्रोजेक्ट कर। तो समरी जो है वो मेजर चीज है जिसको फेस करना है किसी रिव्यूअर ने या किसी एक्सपर्ट ने, किसी भी एजेंसी के या किसी भी कॉलेज के जिसको आपने प्रपोजल जो है वो पेश किया है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्पी, शॉर्ट इन वन पैराग्राफ। बहुत शॉर्ट भी ना हो कि 2 सेंटेंस में आप समरी लिख दें, और लेकिन बहुत लंबी भी ना हो कि 2 सफ़े आप उसके लिए लें, 2 पेजेस, ठीक है ना। तो इट शुड बी 250 टू 300 वर्ड्स, ठीक है ना। इसके अंदर अंदर आपने सारी एक्टिविटीज को बयान कर देना है। इट वुड बी मोस्ट यूजफुल इफ इट वर प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रपोजल हैज बीन डेवलप्ड।
ये बड़ी अहम चीज है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सबसे पहली चीज है टाइटल के बाद, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सबसे अच्छी तब लिखी जाएगी जब आप प्रपोजल कंप्लीट लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन, बाकी चीजें, सारा कुछ टिल एंड, और उसके बाद आप उसको समराइज करेंगे। जाहिर है, देखे ना, आपके पास एक मुकम्मल चीज होगी तो उसका खुलासा बयान करेंगे ना। तो इसलिए रखना इसको प्रपोजल में सबसे पहले है, लेकिन लिखना सबसे आखिर में है। लिखना सबसे आखिर में है। अब इस बात को आपने मिक्सअप नहीं करना। प्रपोजल आप एक डेवलप कर रहे होते हैं अपने लिए, जो कि आपने प्रेजेंट करना है, तो डिटेल्ड प्रपोजल आप पहले लिख लेंगे, सबसे आखिर में फिर उसकी समरी लिखेंगे, और उस समरी को उठा के आप प्लेस करेंगे सबसे पहले। अब बात समझते हैं? कॉपी करेंगे, जो लिखा हुआ चीज है उसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से भी पहले उसको पेस्ट कर देंगे आप, ठीक है ना। सो इट शुड बी पुट टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर द टाइटल, बट इट शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आप सारा डिटेल लिखने के बाद उसका उसकी उसकी आप समरी लिखेंगे। जब तक आपके पास डिटेल मौजूद नहीं है, उसकी समरी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इट शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द प्रपोजल, डेवलप एट द एंड। तो ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? इंट्रोडक्शन आ जाता है। ये अगला कंपोनेंट है रिसर्च प्रपोजल का। अब इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिकली थ्रू दिस पोर्शन यू गिव बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट क्यों करने जा रहे हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताते हैं। यू गिव नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, यू गिव हाइपोथेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और फिर उसके एंड पे आपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने होते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ में आप इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं। मैक्सिमम 1 पेज पे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन मीन यू इंट्रोड्यूस योर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप उसका बैकग्राउंड देते हैं, फिर आप क्या करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसकी आप इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इट ओरिएंट्स द रीडर्स टुवर्ड्स द टॉपिक। इट ओरिएंट्स द रीडर्स, ये उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे आपकी ओरिएंटेशन हुई थी, याद है ना आपको? आपकी ओरिएंटेशन हुई थी तो आपको क्या, अब यू आर ओरिएंटेड टू द कॉलेज एंड यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द टीचर्स, एंड टीचर्स वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स यू पीपल, कि आप हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास जब आए थे ना। तो ये दिस इज ओरिएंटेशन। सो दिस इंट्रोडक्शन बेसिकली ओरिएंट्स द रीडर टुवर्ड्स द टॉपिक, कि हमारा टॉपिक क्या है, क्यों है, कैसे है, और क्या करना है उस पे। तो ये चीजें। इट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक। आप बताते हैं कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट आप उसमें रिसर्च गैप को मेंशन करते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं, और उसकी रेलेवेंस साबित करते हैं कि ये टॉपिक क्यों इतना रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, कि मैं इस पर रिसर्च करने जा रहा हूँ। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। And you justify the choice of your topic. This is called rationale. Why you are going to do your research? Rationale is why you are going to do your research. So you give the rationale of your research project. इसी में देते हैं आप, ठीक है। And you clarify your intent by stating the research problem. Research problem आप state करते हैं कि what is research problem. Then you hypothesize. आप hypothesis, research hypothesis देते हैं इसमें, ठीक है। And 3 paragraphs are sufficient. इसके लिए 3 पैराग्राफ से ज्यादा ना लिखें। पहला पैराग्राफ बैकग्राउंड का, दूसरा इंपॉर्टेंस का, तीसरा क्या करना है उसका रेलेवेंस, रैशनल, सारा कुछ उसमें मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जरा ये बेसिकली ये पीएचडी के जोक्स हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट में हम प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि बंदा समझता है कि ये बॉडी बिल्डिंग का इंटरनेशनल चैंपियन है जी। जब इंट्रोडक्शन आता है तो हम थोड़ा सा ठोस होके एक टुवर्ड्स अ बिट फिट मैन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम रिजल्ट्स पे आते हैं तो हमारा पेट निकल आता है, सांसें हमारी फूली होती हैं। तो असल चीज जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता लिखने के लिए, लेकिन हम शो ऑफ इतना करते हैं एब्स्ट्रैक्ट में कि रीडर ये समझता है कि शायद यही चांद पे लैंड करने वाला है, या मरीज को यही जो है डिस्कवर, मरीज को मुख्तलिफ डिस्कवरी कर लेगा, ठीक है ना। या कुछ नई डिस्कवरी सारी की सारी और इन्वेंशन इसी बंदे ने करनी है। इंट्रोडक्शन में वो थोड़ा सा और ठुस हो जाता है, और रिजल्ट्स में आके बिल्कुल इसी तरह ठुस हो जाता है। देखें, दिस इज द जर्नी फ्रॉम फिटनेस टू फैटनेस। फिटनेस एब्स्ट्रैक्ट में हम अपनी ऐसी फिटनेस साबित करते हैं कि हम वी कैच द अटेंशन ऑफ द रिव्यूअर एंड रीडर, और रिजल्ट्स में जाके हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये हालत हो जाती है कि इसके और इसका क्या आपस में कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपने अवॉइड करनी है। यू पोज द रियलिटी इन एवरी सेक्शन, और आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करें, बट योर रिजल्ट सेक्शन शुड बी वेरी स्ट्रांग, ना कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग हो। असल चीज तो आपके रिजल्ट्स है ना जिन्होंने इंपैक्ट देना है।
असल वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ प्रोपोजिशन व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमिन इट्स वैलिडिटी। बेसिकली दिस इज अ प्रोपोजिशन, आप प्रपोज करते हैं कैसे होगा, आप प्रपोज करते हैं कि ऐसे होगा, आप अपनी रिसर्च का हाइपोथेसिस जो प्रपोज करते हैं कि ऐसे मेरी रिसर्च में होगा, ये प्रोपोजिशन है। वो अब आप सारे प्रोसेस के बाद उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं, इट कैन बी प्रूवन राइट और इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग। ये कोई इशू नहीं है कि आप जो प्रपोज करते हैं वो उसके अपोजिट हो जाए, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने रिसर्च की है बेसिकली, ठीक है ना। सो हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ प्रोपोजिशन, आप प्रपोज करते हैं चीज कि भाई ये चीज ऐसे मैं प्रपोज कर रहा हूं, एंड देन थ्रू योर रिसर्च आप उसको उसकी वैलिडिटी को डिटरमिन करते हैं। सो दिस इज अ प्रोपोजिशन बेसिकली, एंड दिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है ना, उसका जो आप खुद से टेंटेटिव जवाब देते हैं, टेंटेटिव मीन के एक यूं समझ लें कि फर्जी जवाब दे देते हैं आप, ठीक है ना। तो वो जो आप जवाब देते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो जवाब जो है टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन इज बेसिकली योर रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हम आते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस की ओरिजिन्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो हमें कहाँ से मिल सकता है। लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप होता है, क्योंकि आप एक्सेप्शन टू एक्सेप्टेड थ्योरी, जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनको एक्सेप्शंस, आप वो खुद एक्सेप्शन प्रपोज करते हैं कि ये ऐसे है तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। सो दीज आर द एक्सेप्टेड थ्योरी। उन एनोलॉजी, मतलब आप कहते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ लैटिन अमेरिका में क्या वो जो है अपना एक गोभी की साथ मिलती जुलती शक्ल की चीज थी, वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ पे रिसर्च हुई कि क्योंकि ये इसकी शक्ल और सारी प्रॉपर्टीज और इसकी ग्रोथ जो है वो सारी की सारी कैबेज से मिलती है, कॉलीफ्लावर से, सॉरी कॉलीफ्लावर से, गोभी से, फूल गोभी से। तो क्यों ना हम गोभी फूल गोभी को इन्वेस्टिगेट करें, रिसर्च करें कि भाई क्या ये है अपना, इसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। सो दिस इज एनोलॉजी, सिमिलैरिटी बेसिकली, ठीक है ना। एंड very important origin of the research hypothesis is review of literature and your research question as well। आप रिसर्च क्वेश्चन लिटरेचर रिव्यू से लेते हैं, रिसर्च गैप्स आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना, फिर आपके रिसर्च क्वेश्चन डेवलप होते हैं, उसी रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से आप फिर रिसर्च क्वेश्चन का जवाब भी प्रपोज करते हैं, दैट प्रपोज्ड आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन इज रिसर्च हाइपोथेसिस। सो दीज आर द ओरिजिन्स ऑफ योर रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए कि ये आपने चीजें करनी है, इसी तरह आपको रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू कम टू राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च। आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो एक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, टू से, अक्सर टू से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम लिखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके हर लेक्चर के शुरू में बताते हैं, at the end of session you should be able to describe the properties of this drug, therapeutic uses of that drug, adverse effects of that drug, mechanism of action of that drug, ठीक है ना। टू से शुरू होते हैं, तो वो हम वी एक्सपेक्ट कि हम एट द एंड वो अचीव कर लेंगे, बट वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू दिस रिसर्च इज आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। वो उनको स्टेप वाइज हम उनको लिखते हैं। स्टेट व्हाट your research hopes to accomplish, I mean what you are going to achieve through your research, and they specify the outcome of your research project। basically step wise वो outcome बताते हैं कि आपकी outcome क्या होगी, वो आप उनको बताते हैं, लिखते हैं कि मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट की ये एक्सपेक्टेड आउटकम है, ठीक है ना। तो वो उन स्टेप्स को आप मेंशन कर देते हैं, टू अचीव टू दिस टू डू दिस, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हुए आपने एक क्राइटेरिया को फॉलो करना, उसको कहते हैं स्मार्ट क्राइटेरिया। क्या कहते हैं? स्मार्ट। स्मार्ट इज बेसिकली एक्रोनिम। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एस स्टैंड्स फॉर, आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। आप भी, रिसर्चर भी स्मार्ट होता है, और वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव लिखता है, दोज ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी स्मार्ट। Smart is a criterion, acronym for certain criteria basically। S stands for specific। Specific is that you indicate precisely what you intend to change through your research project। आपने स्पेसिफिकली बताना है कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जब क्या काम कर जाएगा, क्या चेंज लाएगा सोसाइटी में, रिसर्च फील्ड में, आपके फील्ड में क्या चेंज लाएगा, वो स्पेसिफिकली आपने इंडिकेट करनी है, ठीक है ना। वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप, इट शुड बी मेजरेबल।
Research objective should be measurable. ये बात पक्की है. M stands for measurable. It indicates what you accept as a proof of project success. आप बताएंगे भाई, आपके नजदीक आप कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा अगर ये हो जाए तो, सो ये हो जाए तो दिस इज अ प्रूफ ऑफ योर प्रोजेक्ट सक्सेस. आप जो चीज को प्रूफ के तौर पे लेते हैं, यू विल मेंशन इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट. सो एम स्टैंड फॉर मेजरेबल. ए फॉर अचीवेबल. Achievable is that it should be feasible that you can achieve within given frame of time. कि भी ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, ये जो गिवन फ्रेम ऑफ टाइम है उसके अंदर अचीव हो जाएगा. ये अचीवेबल रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है ना. ये ना हो कि आप कहें कि मैंने 4 माह की रिसर्च में पूरे पाकिस्तान का डेटा जो है वो इकट्ठा करना है, तो ऐसे मुमकिन ही नहीं होगा. आप तो पूरे स्वात का डेटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे. तो आपने अचीवेबल रखना है अपने प्रोजेक्ट को, और मेंशन करना है, बकायदा बताना है कि ये अचीवेबल है, दिस इज फीजिबल टू बी अचीव, ठीक है ना. तो ये आपने बताना है. R stands for realistic. You should be very realistic. Like you're going to do your MBBS research project in community medicine. आप अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं और आप कहें कि आपने चांद से जाके सैंपल इकट्ठे करने हैं, चांद से जाके आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं. प्रोजेक्ट तो बड़ा नॉवल है, लेकिन मसला ये है बेटा कि भाई आप कैसे चांद से जाके सैंपल इकट्ठे करेंगे. यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज, यू डू नॉट हैव फाइनेंसेस. आप मतलब कि ना तो वो स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी के ओनर भी नहीं है, एलॉन मस्क नहीं है आप, ठीक है ना, कि आपके पास रॉकेट्स हैं, या आपके पास कोई ऐसी 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 मतलब कि कोई, या नासा में भी आप नहीं है, या नासा भी नहीं है आप, ठीक है ना. इवन पाकिस्तान अभी तक चांद पे लैंड नहीं कर सका, ठीक है ना. तो आप क्या करेंगे. तो इसलिए आपने उसको वेरी रियलिस्टिक रखना है, वेरी रियलिस्टिक, ठीक है. या आप ये कहें कि जी आपने सैंपल जो है वो समुंदर की तह से इकट्ठे करने हैं जाके, तो भाई कैसे, आपको सी डाइविंग नहीं आती, फिर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपको इजाजत नहीं मिलेगी, सारी चीजें. सो योर प्रोजेक्ट शुड बी रियलिस्टिक. इट शुड स्टेट दैट व्हाट रिजल्ट्स कैन बी रियलिस्टिकली अचीव्ड एंड गिवन इन अवेलेबल सोर्सेज. मैंने बताया ना कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो लिमिटेड होते हैं और टाइम लिमिटेड होता है. तो उसमें आपने उसको उस हिसाब से रियलिस्टिक बनाना है, अनरियलिस्टिक नहीं बनाना. एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड. कि आपने 5 साल में एमबीबीएस करना है, उसमें 6 माह में आपने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, और आप कहें कि मैंने पूरे पाकिस्तान का डेटा जो है उसकी मैपिंग करनी है, तो ये हो ही नहीं पाएगा. ये तो शायद कई सालों में ना हो पाए, और उसके लिए तो खैर पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पास मल्टीपल टीम्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिसोर्सेज होते हैं. आपके पास कोई चीज नहीं, आप अकेले या आपका 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है और पूरे पाकिस्तान से डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करे 6 माह में या 4 माह में, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना. इट इज नॉट अचीवेबल, इट इज नॉट रियलिस्टिक. सो आपके पास टाइम क्या है, 4 से 6 माह. तो उसी हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड बनाना है कि इस टाइम फ्रेम में हम ये कर लेंगे. इसी तरह ये रियलिस्टिक होता है. सो योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट. I mean specific, measurable, achievable, realistic and time bound. ठीक है ना? And your objectives are basically what you are going to accomplish through your research project. ये वो statements हैं basically. And they start from the action words. To से start होती है mostly. ऑब्जेक्टिव के बाद आता है आपका लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू पे आपको याद है मैंने आपके साथ डिस्कशन की हुई है कि आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं और लिटरेचर आप सर्च कैसे करते हैं बेसिकली. तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली है क्या. इट इज अ रीसेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट रिसर्च स्टडीज एंड दे ऑलवेज रेफर टू द ओरिजिनल सोर्स. आप दूसरी स्टडीज जो हैं उनको मेंशन करते हैं, ठीक है ना. उन स्टडीज को आप इस तरह मेंशन करते हैं अपने अल्फाज में कि आप उनके जरिए अपना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं. और लिटरेचर रिव्यू में हमेशा आप ओरिजिनल सोर्स को रेफर करेंगे. आप जब भी रेफरेंस लिखेंगे तो ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस लिखेंगे कि फलां बंदे ने कहा, मैंने फलां पेपर से नहीं पढ़ा, उस बंदे ने जिस पेपर का रेफरेंस दिया उस पेपर को आप मेंशन करेंगे, ठीक है. तो जब मैं वर्ड पेपर यूज करता हूं, दिस इज रिसर्च आर्टिकल बेसिकली पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल्स, ठीक है. तो ये चीज है, ये आपके जहन में होनी चाहिए. एंड it discuss you should discuss how the literature applies, show the weaknesses in the design of
existing studies discuss how you would avoid similar problems. मैंने आपको क्या बताया था, आपने रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है लिटरेचर रिव्यू के जरिए। आप उन स्टडीज की वीकनेसेस को लिखते हैं, ठीक है ना, उन स्टडीज की वीकनेसेस को लिखते हैं और फिर उनको डिस्कस करके आप उनके जो डिजाइन है कि इनमें क्या क्या वीकनेसेस हैं, आप उसको कैसे अवॉइड करेंगे, उस रिसर्च गैप को कैसे फिल करेंगे, आपने बेसिकली ये बताना होता है इसमें, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर you state that where your position is on this issue. This is basically filling of a research gap. आप रिसर्च गैप को ये फिल कर रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया रिसर्च गैप को और उसको आप अपनी पोजीशन को स्टेट करके फिल करते हैं। एंड हाउ इज योर आइडिया डिफरेंट और बेटर, ये अब आपने अपना प्रपोज कर दिया कि मैं इस तरह करूंगा, मेरी पोजीशन ये है, मैं ऐसे इसको इस रिसर्च गैप को फिल करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिटरेचर रिव्यू में आप देते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू के बाद आ जाता है मेथोडोलॉजी। इसको रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं। मेथोडोलॉजी इज बेसिकली इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप्स ऑफ योर रिसर्च, स्टेप्स इन द सेंस कि जैसे आपने फ्रॉम सैंपल कलेक्शन टिल सैंपल एनालिसिस आपने कैसे करना है, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी शामिल है, उसमें डेटा कलेक्शन भी शामिल है, उसमें सैंपल नंबर भी शामिल है, उसमें स्टडी पॉपुलेशन भी शामिल है, उसमें आपका स्टडी कोहार्ट भी शामिल है, एरिया ऑफ स्टडी भी शामिल है, प्लेस ऑफ स्टडी भी शामिल है, हर चीज उसमें शामिल होती है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट योर सैंपल्स, वो भी शामिल है, कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे वो भी शामिल होता है मेथोडोलॉजी में। ऑल दीज थिंग्स दे आर इंक्लूडेड एंड रिटन अंडर हेड ऑफ मेथोडोलॉजी। और इसी मेथोडोलॉजी से बाद में आप बजटिंग करते हैं कि मैंने ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो इस काम के लिए इतने इतने पैसे चाहिए, दिस इज बजटिंग। तो ये मेथोडोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। What you are going to do in technical terms is your methodology. It may contain many subsections, ठीक है ना, इसमें सब सेक्शंस हो सकते हैं। यू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर प्रपोज सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स एंड सब प्रॉब्लम्स, उसमें आप बताते हैं कि मैं डाटा ऐसे कलेक्ट करूंगा, अगर ये प्रॉब्लम आया तो उसको मैं ऐसे ऐसे उसको कर लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, डाटा में ये हो गया तो मैं ऐसे कर लूंगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उसमें बताते हैं कि किन पेशेंट्स को या किन लोगों को मैं स्टडी में शामिल करूंगा, किन को नहीं करूंगा, किन बुनियादों पर करूंगा, किन बुनियादों पर नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। You provide information about tasks such as selection, sample selection. आप ये सैंपल क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंक्लूजन क्राइटेरिया आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, इसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, ठीक है ना। मतलब स्टडी में इंक्लूड और एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं लोगों को और कैसे, किस बुनियाद पे, किस बिना पे कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, दिस इज द रीजन फॉर सैंपल सिलेक्शन। एंड हाउ वुड यू कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्शन उसमें है। अब उस डेटा कलेक्शन के बाद आपने एनालिसिस करना है, लैब एनालिसिस है, ठीक है ना, बेंच रिसर्च करनी है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्या चाहिए, या डेटा कलेक्शन के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फिर उसको वैलिडेशन उसकी कैसे करेंगे, सारे प्रोसीजर्स कैसे करेंगे, आपके पास उसके रेफरेंसेस क्या क्या हैं, कहाँ से आपने ये प्रोसीजर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। एंड इंक्लूड द मेजर फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, आप सारी फेजेस को एक गैंट चार्ट की शक्ल में बताएंगे। गैंट चार्ट एक अलग से एक लेक्चर होगा कि वो कैसे बनाया जाता है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बनाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। गैंट चार्ट किसे कहते हैं? गैंट चार्ट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर मेथोडोलॉजी एंड स्टेप्स ऑफ योर रिसर्च बेसिकली। तो ये सारे मेजर स्टेप्स या मेजर फेजेस जो हैं आप उनको गैंट चार्ट की शक्ल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये अलग से आप गैंट चार्ट भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दिस इज but you write up each and every step of your research methods, methodology को आप कैसे सैंपल क्यों कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किन से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किस किस चीज को यूज कर रहे हैं, सैंपल को कैसे आप प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सारा कुछ ये चीजें आप उसमें ईच एंड एवरी बिट ऑफ डिटेल आप देंगे। सो दिस कम्स अंडर द मेथोडोलॉजी सेक्शन and you should be very specific about what research methodology you will use and why. आपको पता होना चाहिए कि आपने ये मेथोडोलॉजी क्यों यूज की है, आपने ये रिसर्च डिजाइन क्यों यूज किया है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, बड़े क्लियर होने चाहिए आपकी ये डिजाइन मैंने क्यों चूज किया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके शॉर्ट कमिंग इसकी क्या क्या है, ठीक है ना। इसने आउटवे कैसे किया दूसरे डिजाइन को कंपैरेटिवली, इसके इस रिसर्च में ये प्रॉपरली कैसे यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन अबाउट दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिजाइन। अच्छा, ये सारा कुछ आपने लिख लिया, उसके बाद आप रिसर्च प्रपोजल में जो जो आपने रेफरेंसेस हैं, जो रेफरेंसेस कहाँ पे साइट हुए हैं, आपके इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड दिया, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में
आपके लिटरेचर रिव्यू में आपने दूसरों की स्टडीज से ली है ना सारी चीजें ये, तो आपने उनको साइट किया है, तो अब आपने उनके रेफरेंसेस देने हैं पीछे। अब रेफरेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप अप टू डेट होने चाहिए। द 50% ऑफ योर रेफरेंसेस शुड बी फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, जिसको हम कहते हैं अपडेटेड रेफरेंसेस, ठीक है ना। आखिरी 5 साल जो स्टडी है ना, वो असल स्टडीज होती हैं। वो उसके उससे पहले की स्टडीज भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 50% रेफरेंसेस आपके आखिरी 5 साल होने चाहिए, ये अपडेटेड स्टडीज होती है। एंड इट शुड बी हाईली रेलेवेंट विद द प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आपने बस लिस्ट बनाने के लिए कोई भी रेफरेंस यूज कर लिया। आपने वही रेफरेंस साइट करना है एंड पे बिब्लियोग्राफी में, लिस्ट में, जो आपने यूज किया है अपने टेक्स्ट में, और वो रेफरेंस रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप हेल्थ साइंस की स्टडी कर रहे हैं और उसमें आप मतलब फिजिक्स का या इलेक्ट्रॉन फिजिक्स का या न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई रेफरेंस दे दें, ठीक है ना। तो हो सकता है कि थोड़ी सी रेलेवेंस हो, लेकिन भाई इररेलेवेंट रेफरेंस कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं होना चाहिए और इररेलेवेंट रेफरेंसेस कैसे लोग करते हैं, वो चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस हम करेंगे लेटर ऑन, जब हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। वेल, नो, ओरिजिनल सोर्स आपने देना है। अब रेफरेंसेस के 3 ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जर्नल पब्लिकेशंस और बुक्स हैं। सेकंड ऑर्डर, ये मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू में बताया है। सेकंड ऑर्डर प्रोसीडिंग्स, पब्लिकेशन है, कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, वो भी राइट अप में होती हैं। थर्ड ऑर्डर क्या, टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट के किसी महकमे की रिपोर्ट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसका आप रेफरेंस देते हैं, ये थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। एंड इट डू नॉट इंक्लूड प्राइवेट कम्युनिकेशंस। रेफरेंस में आप ये ना कहें कि डॉक्टर जाहिद इकबाल ने ये कहा था और डॉक्टर उबैदुल्ला ने ये कहा था, ये आप नहीं कर सकते। हमारा कहना कोई रेफरेंस नहीं है। प्राइवेट कम्युनिकेशन इज नॉट अ रेफरेंस, ये बात आपने जहन में रख लेंगे। रेफरेंस इज व्हेन इट इज फ्रॉम पब्लिश्ड थिंग। वो पहला ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर है, तीसरा ऑर्डर है, वो आपको मैंने बता दिया है। एंड डू नॉट साइट सपोर्ट फॉर कॉमन नॉलेज। मसलन आप कहते हैं जी, एक फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आप ये बताना चाहते हैं कि जमीन गोल है, एंड यू गिव द रेफरेंस कि जमीन गोल है, ये गलीलियो ने कहा था, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो दिस शोज द वीकनेस। वो नाउ दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, दिस इज कॉमन नॉलेज कि जमीन गोल है, ठीक है ना। लेकिन आप उसका रेफरेंस देंगे तो ये वीकनेस शो करेगा आप, ठीक है ना, कि आप अपने इस दावे के बारे में भी स्पेसिफिक नहीं है, जो कि कॉमन फैक्ट है, जो कि जनरल नॉलेज है, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसी चीजों के बारे में आप रेफरेंस ना दिया करें। उसके बाद आप मेंशन करते हैं आपकी स्टडी का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यह है कि आपकी स्टडी क्या कर पाएगी, इंपॉर्टेंस क्या आपकी स्टडी की, इफेक्ट क्या आएगा उसका सोसाइटी पे, आपके कॉलेज पे, आप पे, स्टूडेंट्स पे, आप पे पीयर्स पे, ठीक है ना। कॉलेज की यूं समझ लें कि रिसर्च डेवलपमेंट पे या मुआशरे पे क्या उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा, वो आप मेंशन करते हैं। यू शुड नो इट। इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग योर स्टडी, दिस इज मेंशन इन द इम्पैक्ट। What are the potential impact on research community, teaching, training of manpower, institutional capacity building, capability building, local industry पे क्या impact आएगा। And if you find this difficult to write, then most likely you have not understood the problem। अगर आप अपनी स्टडी का इम्पैक्ट ही नहीं जानते या आप लिख नहीं पाते, तो इसका मतलब है आप अपनी स्टडी को समझ नहीं पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप ये जानें कि आपकी स्टडी से क्या क्या इफेक्ट आएंगे मुआशरे पे, कॉलेज पे, आप पे, स्टूडेंट्स दूसरे पे, ठीक है ना, सब पे। वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उनमें 3-4 चीजें हैं, रिसर्च कम्युनिटी पे, टीचिंग ट्रेनिंग पे, इंस्टीट्यूशन पे, लोकल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट बजट, जिसके बगैर रिसर्च होती नहीं है। हम जो रिसर्चर है ना, जो हम रिसर्च करते हैं, तो हम सारी रिसर्च जब ये प्रपोजल जमा करवाते हैं, तो उसका एक मकसद ये होता है कि हमें पैसे मिल जाएं ताकि हम ये रिसर्च कर लें। क्योंकि आपको रिसर्च करने के लिए पैसों की जरूरत है। बगैर फिनेंसेस के आप रिसर्च नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये एक प्राइवेट मीटिंग थी अमेरिका में। तो ये मुझे किसी ने बताया, उसने कहा जी अमेरिका के एक बंदे ने खड़े होकर, एक रिसर्चर ने कहा, आपको पता है कि अमेरिका आगे क्यों है इस वक्त रिसर्च में? दूसरे मुल्कों के लोगों से पूछा, उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी वर्कशॉप में, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा अमेरिका इसलिए आ गया बिकॉज वी कैन अफोर्ड टू लूज। हम नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं रिसर्च में, इसलिए हम रिसर्च में आगे हैं।
जो बंदा रिसर्च में नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, आई मीन तो वो चाहता है कि जो मैं जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका रिजल्ट वैसा ही जो मैं चाह रहा हूँ, तो वो रिसर्च नहीं होती। ठीक है ना? वो जो चाह रहा है वो बेसिकली प्रोपोजिशन हाइपोथेसिस है, इट कैन बी प्रूवन राइट और रॉन्ग। ठीक है ना? तो अगर रॉन्ग हो गया तो सारे पैसे ज़ाय हो गए। एक्चुअली वो ज़ाय नहीं हुए, उन्होंने भी नॉलेज जनरेट किया है। ठीक है ना? सो बजट शुड बी इन लाइन विद द गाइडलाइंस ऑफ द फंडिंग एजेंसी। आइटम वाइज बजटिंग आपने करनी है कि सैलरीज कितनी है, हार्ड इक्विपमेंट कितना आएगा, एक्सपेंडेबल सप्लाईज केमिकल्स कितने आएंगे, ट्रैवल पे कितना खर्चा आएगा, लिटरेचर कास्ट कैसी होगी, ये सारी चीजें हमने मेंशन है। देन यू नीड टू जस्टिफाई ऑल एक्सपेंसेस। ये ना हो कि आपने पैसे तो अपना सैंपल कलेक्ट करने हैं सैदो शरीफ से, और आप उसमें शामिल करें कि ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं 5 लाख रुपया। वो पूछेगा 5 लाख किस चीज के, आप कहेंगे कराची का रिटर्न टिकट है, रिटर्न एयर टिकट है। वो कहेंगे कराची क्यों जाना, और तो आप कहेंगे मैंने बस वैसे ही शुगलन कराची जाना था, ऐसे कराची घूमने के लिए। तो वो कहेंगे आपकी रिसर्च से इसका क्या ताल्लुक है भाई। तो फिर सो यू नीड टू जस्टिफाई ऑल एक्सपेंसेस, आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, इसलिए वो एक्सपेंसेस शामिल करें जो कि रियली होंगे उसमें। एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रपोजल नैरेटिव, आपने मेथोडोलॉजी से सारी चीजें लेनी है बजटिंग। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा आपका रिसर्च प्रपोजल है। एंड विद दिस आई थैंक यू। एंड नाउ द रिसर्च प्रपोजल राइट अप इज ओपन फॉर डिस्कशन, और उसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ जी वेलकम फॉर क्वेश्चंस।